Hello guys, welcome to our new video. In today's video, we are going to see how string works and how we can use string builder and string buffer and what is the difference between both. So we'll start today's video. So first of all, to deal with string, we have three type of string classes. First one is string, another one is string builder, and third one is string buffer. String buffer. Okay. We'll see one by one all these classes. So first of all, we for reference we will just visit the official website of Java, which is Oracle String API in Java. So we'll see the first site from Oracle. Here we can see uh, Java's documentation, official documentation says string is a class where it belongs to java.lang.object and java.lang.string package. So here string class implements three interface, which first one is serializable, and second one is char sequence, and third one is comparable. So means let's see first interface, or we can see only it its overview. Like serializable means it allows our string to convert it into JSON format, which is used to send the data while we deals with APIs. Like when we want to send the data from one point to other point, we need some special type of a special type of data. We need to convert it into JSON format to send it. So the serializable interface gives us the functionality for that. And another one is char sequence. Char sequence is nothing but we can say, suppose char sequence means in this bracket we'll give suppose a b c d. So this abcd is nothing but an sequence of character, which is char sequence. So again another one is comparable. So comparable interface gives us an functionality to compare the string with we can say other strings or multiple strings. So let's suppose we'll just see the basic of string first. So how we can declare string? The first way to declare is using string data type and name of the variable, which we use the name itself, and gives directly value. Like suppose Ganesh will be the string value. So the name variable will store the Ganesh value. Okay, and another way is using new keyword, means string. We will give the variable name as str is equal to new string. Okay, this new string is nothing but our constructor. New string is nothing but our constructor. So you can get an question, what is the difference between both? We can use this method also and this method also, but the thing is that here is, if we use first method using equal to, so in memory we have one special type of memory, that is heap memory. I think you heard this before or not, just we'll discuss it. So this is heap memory. So in heap memory there is a small partition called as string literal pool. We'll just write it here, string literal pool, and the whole memory, other memory, is named as heap area or heap memory. uh, the first one, if we use the first method to declare string, this name instance will be going and store it into the string literal pool, means here it will store the Ganesh. And when we use the new keyword, using new keyword and constructor, this str value will be stored into here, means directly in heap area.
So you may get an again another question, what is the difference between both? So in string literal pool, if we create a string, means it has by default many strings, means pre-defined string. There are more number of string sequences already present in the string literal pool. If we if we store Ganesh here, it will first check whether it is by default Ganesh is already present. If already present, it will not create new object. It directly takes the reference of this already presented Ganesh name. Uh, Only it will assign the address of that into name variable. And if we use new, it will create new variable. So if you didn't understand, we'll just get new example. Okay, so first one, अभी सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं तो करता हूँ कि एक स्ट्रिंग str इज इक्वल टू लेट्स abcd, ये एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा एक है स्ट्रिंग str1 इज इक्वल टू नहीं, अभी अपन न्यू से कीवर्ड करते हैं, str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। ओके, और इसके अंदर देते हैं ये abc। ओके, तो डिफरेंस क्या है पता है, अगर ये पूरा अपना हीप मेमोरी है और इसके अंदर एक छोटा सा इंस्टेंस है अपना स्ट्रिंग लिटरल पूल, स्ट्रिंग लिटरल पूल एंड हीप मेमोरी। सो ये जो है str, एक तो इधर पहले से ही बहुत सारे कॉम्बिनेशन रेडी हो गए पहले से ही, जैसे कि ए बी या बी बी, या फिर और जैसे मल्टीपल ए बी सी। अगर ये पहले से ही रेडी है, तो अगर मैंने इस इक्वल मेथड यूज़ करके अगर स्ट्रिंग क्रिएट करी, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्ट्रिंग लिटरल पूल में चेक करेगा कि अपना ए बी सी है क्या, सबके साथ पहले चेक करेगा। अगर है तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट इस एड्रेस को, इसका जो एड्रेस है वो डायरेक्टली str में जाके स्टोर कर देगा। इफ सपोज करो इसका एड्रेस है 1001, तो ये क्या करेगा, इस str में 1001 स्टोर कर देगा सिंपली। अगर मैं फिर से भी एक कोई कर दूं कि सपोज करो स्ट्रिंग str2 इज इक्वल टू सेम abc, तो ये str2 में भी क्या करेगा, इसी का रेफरेंस स्टोर करेगा, मतलब इसमें भी ये 1001 स्टोर करेगा। मतलब ये हर बार एक ही जो प्री डिफाइंड स्ट्रिंग रहती है उसके ही रेफरेंस को पकड़ता है और उसी को एज ए रेफरेंस मानता है और उस वेरिएबल में स्टोर करता है। बट इफ वी आर गोइंग फॉर द यूजिंग न्यू कीवर्ड, ये क्या करेगा, यहाँ पे हीप एरिया में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जिसका नाम रहेगा str1 और इसके अंदर abc रहेगा, ठीक है। और अगर मैंने और एक स्ट्रिंग str4 इक्वल टू न्यू किया और इसमें भी अगर abc किया, तो ये क्या करेगा, ये इसी ऑब्जेक्ट में नहीं स्टोर करेगा, ये str4 नाम का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और इसके अंदर ये वाला, अभी तो ये ज़्यादा हो गया, पर इसके अंदर abc ये नया वाला स्टोर करेगा, ठीक है। मतलब ये हर बार एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और ये स्ट्रिंग लिटरल पूल क्या करेगा, जो क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है उसी को रेफरेंस करके उसका एड्रेस इसमें रिटर्न कर देगा। मतलब इसमें बार बार एक ही टाइप के स्ट्रिंग नहीं बनेंगे, इसमें एक ही बार बनेगा और उसी को रेफरेंस लेंगे, वेयर एज हीप एरिया में बार बार एक नया स्ट्रिंग बनेगा। तो ये मेमोरी एफिशिएंसी के लिए अच्छा है, पर अगर अपने को अपने यूज़ केस है कि मुझे हर बार नया ही ऑब्जेक्ट चाहिए, तो अपन न्यू कीवर्ड यूज़ करके करेंगे, ठीक है। और एक बात स्ट्रिंग का क्या है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, मतलब इंटरनली इम्यूटेबल भी क्यों है मैं ये भी बताता हूँ। इंटरनली स्ट्रिंग क्या है, अगर मैं स्ट्रिंग नेम कर दूं और इसमें दे दूं ABCD, अगर ये नाम है, तो ये क्या है, स्ट्रिंग इंटरनली एक कैरेक्टर का एरे है।
मीन्स अभी सपोज करो ARR, एक सेकेंड, नेम क्या करेगा, एक सेकेंड, ARRCH मतलब कैरेक्टर एरे, नेम इक्वल टू ये, इसमें एक एक कैरेक्टर स्टोर रहेगा, मतलब B और ये C और फिर इसके बाद में D। तो ये ऐसा ही कुछ स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर टाइप के एरे में स्टोर होता है, ठीक है। तो अगर आपको अगर एरे पता है तो एरे मतलब अपन एरे की जो साइज है वो चेंज नहीं कर सकते, मतलब एरे जो है वो इम्यूटेबल है। तो इसीलिए स्ट्रिंग भी एक कैरेक्टर का एरे ही है, तो इसीलिए स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल है। और स्ट्रिंग में वो सारे ही ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं जो जो आप एरे के साथ में परफॉर्म करते हैं, तो वो एक है। और इम्यूटेबल है मतलब रन टाइम में आप उसको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगर मैंने सपोज कर लो कि str या स्ट्रिंग str इज इक्वल टू ABC बनाए, और फिर अगर मुझे str डॉट कॉनकैट, ठीक है, कॉनकैट मीन्स अपन दो स्ट्रिंग को अगर कॉनकैटिनेट करना है या फिर जोड़ना है तो उसके लिए अपन कॉनकैट ये फंक्शन यूज़ करते हैं। तो मुझे ABC में D और E एक एक्स्ट्रा कॉनकैट करना है। तो ये क्या करेगा, अगर मेरा हीप एरिया में str है, सपोज कर लो कि अभी मैंने अगर न्यू कीवर्ड से यूज़ किया होता तो ये हीप एरिया में स्टोर होता, पर अभी मैंने इक्वल टू से किया है तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग लिटरल पूल में जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रिंग लिटरल पूल SPL जो SLP जो भी है, तो ये इसमें जाके स्टोर होगा। और पहले ये किसको रेफरेंस करता था, ABC, पर जैसे मैंने कॉन्कैट कर दिया तो ये क्या करेगा, नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेगा, ये करेगा इसमें ABC D और E, ये जो है ये नई वाली स्ट्रिंग चेक करेगा स्ट्रिंग लिटरल पूल में है क्या, तो अगर है तो वो इसका पॉइंटर हटा देगा और इसको दे देगा रेफरेंस, और अगर नहीं है तो वो नया क्रिएट करेगा और फिर इसको रेफरेंस देगा अगर स्ट्रिंग लिटरल पूल में वो वाली स्ट्रिंग अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है। और तो ये इम्यूटेबल है, मतलब वो क्या करेगा, सेम ऑब्जेक्ट में चेंजेस ना करके, वैसे तो इसने ऐसा करने को होना था, इस ऑब्जेक्ट को मिटा के ABCD और E करना था, पर ये ऐसा नहीं करता है। ये क्या करता है, एक नए ऑब्जेक्ट को, एक तो अगर वो ABCDE स्ट्रिंग लिटरल पूल में प्रेजेंट है तो वो नए ऑब्जेक्ट का पॉइंट या फिर रेफरेंस देता है, मतलब उसी पुराने ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता, वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ही देता है, ठीक है। ये हो गया इम्यूटेबिलिटी। तो इसी इम्यूटेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए अपने पास जावा ने जो है वो दो चीज़ें दी है, एक तो है स्ट्रिंग बफर या फिर स्ट्रिंग बिल्डर, बिल्डर ले लेते हैं पहले, और दूसरा है स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बफर, ओके। तो ये क्या करता है कि इसमें अपन म्यूटेबल, मतलब ये अपने को म्यूटेबिलिटी देता है। जैसे कि सपोज कर लो मैंने एक स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाया, स्ट्रिंग बिल्डर SB इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ओके। और ये न्यू स्ट्रिंग बिल्डर क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है, मतलब यही एक, इसी के मदद से अपन ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसको मैंने एक इनपुट दे दिया ABC, ओके। तो अभी जैसा अपन ने देखा है कि क्योंकि अपन ने इधर न्यू कीवर्ड यूज़ किया है, ठीक है, तो न्यू कीवर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब ये जाएगा अपने हीप एरिया में, हीप मेमोरी में, ठीक है, हीप एरिया। और यहाँ जाके ये SB नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और जिसमें कि अभी फ़िलहाल वैल्यू है ABC, ओके। और अगर अभी मैंने SB डॉट कॉनकैट
या शायद मुझे कंफर्म नहीं है कॉनकैट है कि नहीं, इसमें होगा ही क्योंकि स्ट्रिंग है, पर अपेंड भी रहता है उसमें। पर ए बी, और अभी मुझे इसमें कॉनकैट करना है डी ई। तो पहले था ए बी सी और अभी मैंने कॉनकैट कर दिया डी ई। तो ये क्या करेगा, इसी ऑब्जेक्ट में जाके ये ए बी सी डी को हटा देगा, और अभी इसके इसी में, मतलब नया नहीं क्रिएट कर रहा है वो। एक सेकंड, मैं ऐसा कर लेता हूँ कि ये इसी जगह पे ए बी सी डी और ई ये स्टोर करेगा, और वही स्ट्रिंग केस में क्या कर रहा था, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा था। हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो क्योंकि मैंने इक्वल टू से समझा है। अगर मैं न्यू कीवर्ड से अगर वाई स्ट्रिंग इज म्यूटेबल या इम्यूटेबल बताओ, तो एक सेकंड, स्ट्रिंग एस टी आर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ओके। और इसमें मैंने दे दिया ए बी सी डी, एक सेकंड, इसमें मैंने दे दिया ए बी सी डी, ओके। तो अभी इधर भी अपन ने न्यू कीवर्ड यूज किया, इसका मतलब ये जाएगा हीप एरिया में, ठीक है, हीप एरिया। और यहाँ जाके ये क्या करेगा, इस एस टी आर नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसमें है ए बी सी डी, ठीक है। पर अगर मैंने इसमें एस टी आर डॉट कॉनकैट किया, कॉनकैट, और इसमें लगा दिया ई, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को जैसा कि तैसा ही रहने देगा और एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा एस टी आर नाम का, और इसमें रखेगा ए बी सी डी ई। और ये जो अभी रेफरेंस रहेगा एस टी आर का, पहले यहाँ था तो ये यहाँ से हटा देगा, और अभी एस टी आर में ये वाला रेफरेंस रखेगा। मतलब इससे क्या हो रहा है कि हर बार एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो ये तो मेमोरी इफिशिएंट है नहीं, तो इसीलिए अपने को जावा ने दिया है ये दो चीज़ें, स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर, ठीक है। तो ये हर बार अगर अपन कुछ भी ऑपरेशन करें, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर, मतलब दोनों का काम एक ही है, उसमें डिफरेंस क्या है वो भी मैं बताता हूँ। पर फिलहाल ऐसा समझो कि स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर का काम एक ही है। वो क्या करता है, अगर अपन ने कोई भी ऑपरेशन किया परफॉर्म, तो वो उसी ऑब्जेक्ट में चेंज करेगा, ना कि दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा एज लाइक स्ट्रिंग, ठीक है। और अभी रहा डिफरेंस की बात कि स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर में क्या है, तो ये जो स्ट्रिंग स्ट्रिंग बफर है, ये एज कम्पेयर टू स्ट्रिंग बिल्डर फास्ट है, और ये स्लो है स्ट्रिंग बफर। आप इसके नाम से भी याद रख सकते हैं इसको, क्योंकि बफर मीन्स अपन जब कुछ सर्च करते हैं तो वो बफरिंग होता है, मतलब वो टाइम लगाता है। तो स्ट्रिंग बफर जो है ये स्लो है, और ये स्ट्रिंग बिल्डर फास्ट है। तो फास्ट क्यों है, क्योंकि ये मल्टी थ्रेडिंग में, मतलब मल्टी थ्रेडिंग नहीं बोल सकते अपन, थ्रेड सेफ नहीं है ये वाला। चलो नीचे ही लिख लेता हूँ, एक सेकेंड, मतलब इसमें हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। तो ये जो स्ट्रिंग बिल्डर है, ये पहली बात तो ये फास्ट है। तो फास्ट क्यों है, तो ये क्योंकि ये थ्रेड सेफ नहीं है, नॉट थ्रेड सेफ। सो थ्रेड सेफ मतलब एक मल्टी थ्रेडिंग में कॉन्सेप्ट है थ्रेड सेफ। तो इसमें क्या रहता है, सिंक्रोनाइजेशन रहता है। अगर समझ लो कि मेरा कोई एक रिसोर्स है जिसमें कि मेरी स्ट्रिंग ए बी सी डी है, और मेरे कोई भी दो थ्रेड या मोर देन वन थ्रेड है, एक थ्रेड वन और ये थ्रेड टू, ठीक है। तो अगर ये एक ही टाइम पे दोनों इसको एक्सेस कर ले, तो ये क्या होगा, अगर ये हो सकता है कि दोनों को ना मिले, मतलब डेडलॉक हो जाए। डेडलॉक एक कंडीशन रहती है जिसमें रेस कंडीशन, दोनों ही थ्रेड्स एक ही रिसोर्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो हो सकता है वो दोनों ही ब्लॉक हो जाए, दोनों को ना मिले। और दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है ये कुछ गलत ही इनपुट उठा ले, ए बी सी डी के जगह 0 1 2 या ए बी ही उठा ले, तो ये क्या होगा, फॉल्टी इनपुट आएगा। तो अपना थ्रेड सेफ क्या करता है, एक टाइम पे किसी भी एक ही थ्रेड को काम करने के लिए अलाउ करता है। मतलब एक तो ये वेटिंग में रहेगा जब तक कि ये थ्रेड इसका काम निपटा ले, और जब ये हो जाएगा इसका, तो फिर एक तो ये डेड स्टेट में जाएगा या फिर वेटिंग स्टेट में जाएगा, और तब तक कि ये अपना काम करता रहेगा। तो इसका मतलब ये दोनों रिसोर्स को सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और जिससे अपने को फॉल्टी डेटा मिलने के बहुत सारे चांसेस कम हो जाए। पर इसको बोलते हैं इस पूरे वर्क को बोलते हैं कि एक टाइम पे एक ही थ्रेड
काम कर सकता है, इसको बोलते हैं अपन सिंक्रोनाइजेशन। सो सिंक्रोनाइजेशन की प्रोसेस स्लो होती है क्योंकि एक टाइम पे एक ही थ्रेड काम करता है। तो इसमें जो है ना, स्ट्रिंग बिल्डर में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन नॉट सपोर्टेड। तो इसीलिए ये थोड़ा सा फास्ट है, क्योंकि एट अ टाइम दो थ्रेड एक ही रिसोर्स स्पेस पे काम कर सकते हैं, और इसीलिए थोड़ा सा फास्ट है। वेयर एज स्ट्रिंग बफर जो है, स्ट्रिंग बफर ये थ्रेड सेफ है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा एज कम्पेयर टू स्ट्रिंग बिल्डर थोड़ा सा स्लो है। तो ये डिपेंड करता है आपकी यूज़ केस पे। अगर आप मल्टी थ्रेडिंग में अगर यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिंग के साथ ऑपरेशन, तो ये मस्ट है कि आप, मतलब ये रिकमेंडेड है कि आप स्ट्रिंग बफर के तरफ जाए। और अगर आपका सिंगल थ्रेडेड है तो बिल्कुल स्ट्रिंग बिल्डर पे जा सकते हो, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर थोड़ा सा फास्ट है। तो ये था टोटल अपना, क्या स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों होता है, और स्ट्रिंग म्यूटेबिलिटी के लिए अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर। So yes, thank you for watching this video. We'll meet in another this type of informative video. So thank you so much.